Quarterfinals, well played. Sunil Shirodkar and team fought like tigers. Lower full toss, good hit from Tushar and straight away to the fielder in the deep long on region. In the last match also he was out for the very first ball of Sunny Kanekar. Now again from Kagiso Rabada. He wanted to play but finds the fielder in the long on region. And the fielder making no mistake in grabbing that opportunity. Once again he departed on without making any score. But make no mistake, CC boys have got the record to score the highest run total. Keep a target of 109 to win. It's just outstanding. Rajesh Gosavi walks in. So this is the fourth quarterfinal. Team winning this match qualifies for the semi-finals. Will be the fourth team. So already 3 teams which has qualified for the semi-finals is Kudneshwar Cricketers in the morning yesterday. In the afternoon it was Shri Bodgeshwar. And today in the morning it was Navdurga Cricketers. And now the winners of this team will qualify for the 4th place in the semi-finals. Kagiso Rabada to Rajesh Gosavi. Gamteshwar Margaon battling against CC boys of Panjim. It is Margaon versus Panjim. Low full toss, good pace from Kagiso Rabada, and there is a field in the deep square leg region. Little bit of fumble there. By the time he picks up and throws, Seedhe Saade Akshay. Na Amitabh, na Dilip Kumar, na kisi hero ke bacche. वो हैं Seedhe Saade Akshay. A slightly fumble though, but a good throw in the end. But 2 runs easy to open an account for himself. Rajesh Gosai once again looking to play a long inning. A lot of massive sixes and boundary. As he is capable of doing that, he's a great batsman, no doubt about that. Lower full toss once again, bang, this time they gave the ball after one bounce over the rope for the fence. A beautiful boundary in the mid-wicket region. After those couple of runs played in the deep square leg region, with the help of this boundary, the score moves up to 6 runs. All 6 runs have been contributed from Rajesh Gosavi. But morning 11, what a team and what they played. They were definitely chasing like lions. Once again a good hit but straight to the field. Good pick up and shy on this time. Direct throw would have been good but slightly away. A sensible single and good call, good coordination, good running between the wickets by these two. Good partnership is forming between these two, which is a sign the score might just go a long way, something around 80-90 for sure. Neil is also a very good batsman who can just play, taking the ball aerial out of the park easily. He's capable of that. He got that muscle power. He can muscle any delivery. Right in the block, all well ball, but straight to the fielder in the covers. Could be a run out here. Oh, little fumble there from Mateen Khan. Mateen could not collect it as the throw was slightly away. Not bang right on the target. A lot of drama which is happening here. Throw, no pickup. Yes, no between these two. A lot of confusion. Now slightly confusion has a matter of concern here for CC boys. But however, both are safe in their respective creases. But Neil on the striking position will be facing Kagiso Rabada. Grushant. Right in the block hole, well bowled. He's been known to bowl this kind of deliveries which can take the batsman by surprise. What a beautiful delivery. Going whistling, passing by in the gloves of wicket keeper. That dot ball marks the end of the very first play. Over score is 7 for 1. DJ. उड़ने लगा है और बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर। तो यहाँ पर अब ड्रोन से भी एरियल व्यू लिया जाएगा। आप देख सकते हैं ड्रोन जाता हुआ बिल्कुल कजिसो रबाड़ा के पास। यहाँ पे बिल्कुल एक खूबसूरत नज़र आप देख सकते हैं।
वरद गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहले ओवर की समाप्ति 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर सीसी बॉयज को पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय न्योता दिया। टॉस जीतकर गोमतेश्वर मारगांव के कप्तान सीधे साधे अक्षय ने तो बिल्कुल अब कजिसो रबाड़े के बिल्कुल सर के ऊपर ड्रोन मंडराता हुआ रिवर्स का प्रयोग, सुंदर शॉट, बिल्कुल एबी डिविलियर्स की याद दिला दी जिस प्रकार से स्ट्रोक को खेला है। लाजवाब राजेश गोसावी। आरसीबी के अभी एबी डिविलियर्स इस प्रकार के शॉट खेलने में माहिर। बेंटेड नी पर रिवर्स का प्रयोग, टाइमिंग बिल्कुल बेहतरीन और नतीजा सुंदर बाउंड्री के साथ स्कोर को पहुंचाया 11 रनों पर। तो ड्रोन स्थिरता से वहां पर रुका हुआ, बिल्कुल एरियल व्यू आप देख सकते हैं टीवी कैमरा पर। अब बिल्कुल विकेट कीपर के सर के ऊपर से जाता हुआ ड्रोन लगता है थोड़ी सी यह दिनेश नाइक के सर के ऊपर बिल्कुल। चूंकि खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल सुंदर गेंद वरद की। राजेश गोसावी फिर से एक बार बेंटेड नी पर खेलने का प्रयास। तो बिल्कुल अशोक जी, टूर्नामेंट में 4 चांद लगे जिस प्रकार से अब ड्रोन उड़ा है तो फिर कल बिल्कुल मजा आएगा सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में भी। वो सुंदर गेंद, बिल्कुल गति परिवर्तन, अगर कहें हिंदी में, अंग्रेजी में कहेंगे चेंज ऑफ फेज और मालवणी में कहेंगे रानलाई तोब्बर वालडाई वटीबर। तो इस प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं वरद, और सबसे बेहतरीन गेंदबाज जो कि गोमतेश्वर मारगांव के in one among the best bowler that he is known for. He knows his line, his length, the change of pace, brilliant. He reads the mind of the batsman. Once again, a beautiful delivery, this time very quick delivery, lot of variation which he brings, is so outstanding, amazing ability to just keep the batsman of that caliber, Rajesh Gosavi, who can take every bowler right out of the park, back to back. He's capable of hitting 3 sixes, 4 sixes in one over. But keeping such a great caliber batsman at one end is only capable from Warad. That only shows the quality, the standard of the team, Gomteshwar Margaon. In the meantime, lovely shot, the ball going rocketing away in the half volley this time. Played it beautifully. He's not a batsman who will just stay there, dot ball and dot ball. He likes to play, freeing his arms, Rajesh Gosavi. This is a good tug of war between Warad and Rajesh Gosavi. A great bowler from Margaon, Warad, playing for Gomteshwar Margaon, but CC boys from Panjim wants to put a good total, batting first in the quarterfinals. That is the last quarterfinal of this tournament. Oh, good hit, clean hitting. This is from Rajesh Gosavi, right in the jungle of Dongri. That's gone sailing out of the reach of any fielder, and with this huge, mighty, gigantic sixer that marks the end of 2 overs. 21 for 1. काफी नजदीक और कजिसो रबाड़ा के पास बार बार ज्यादा हुआ ड्रोन। अब बिल्कुल वरद के सर के ऊपर। तो अशोक जी, अगर खुदा न खास्ता गेंद अगर ड्रोन को लगती है तो क्या करेंगे अंपायर? पॉसिबिलिटीज है शायद संकेत गेंदबाजी करें में जो कि शुरुआत कर रहे हैं। तीसरी ओवर की स्कोर हुआ 21 रन। आखिरी गेंद पे करारा शॉट लगाकर 6 रन बटोरे राजेश गोसावी ने। 2 ओवर की समाप्ति 21 रन। तीसरे ओवर की शुरुआत नील स्ट्राइक पर। पटकी हुई गेंद, सुंदर शॉट, स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है बिल्कुल फील्डर के पहुंच से बाहर। पहली गेंद पर करारा शॉट, टाइमिंग सुंदर। फिर से एक बार 6 रन कर स्कोर को पहुंचाया 27 रनों पर।
बिल्कुल अब रनों की गति को बढ़ाने का प्रयास दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से होता हुआ, दोनों ने पिछले एक गेंद पर करारा शॉट लगा है, गेंद को भेजा मैदान के बाहर और फिर से एक बार बिल्कुल लंबा स्कोर खड़ा करने की फिराक में दोनों ही बल्लेबाज और काबिलियत निश्चित तौर पर रखते हैं। पटकी हुई गेंद और फिर से एक बार बैकफुट पर दे मारा है नील ने, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए। तो तीसरी ओवर का स्वागत करते हुए लंबे लंबे छक्कों के साथ, इन 2 छक्कों के साथ स्कोर को पहुंचाया 33 रनों पर। वरद कुछ कान मंत्र और सीधे साधे अक्षय भी आ चुके हैं कुछ समझाते हुए संकेत को, काफी महंगे साबित होते हुए, बिल्कुल लाइन और लेंथ पूरी तरह से भूलते हुए संकेत, लाइन और लेंथ बिगाड़ दी है नील ने। तो शाकाला जो कि राया नाइक के भाई हैं, हम सभी का ख्याल रखते हैं, उनके लिए उनका धन्यवाद तहे दिल से। थोड़ी सी बाहर को रही गेंद, इस बार सुंदर लिटिल थोड़ा सा फंबल मगर फेयर गेंद आकी गई है बिल्कुल मेरे सामने, और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ड्रोन को। गौरव सावंत बिल्कुल एक टैलेंटेड टेक्निकल पर्सन है, न सिर्फ अच्छे यूट्यूबर मगर काफ़ी अच्छी पकड़ उनकी ड्रोन पर भी। बिल्कुल रायना की तस्वीर को जो कि अब कैमरे में दिखाते हुए, वो यहाँ पर तेकेज लगता है वहाँ पर हल्के से इंजर्ड हुए मतीन खान काफ़ी करीब रहकर विकेट कीपिंग करते हैं। खेलने का प्रयास किया था, बल्ले का मिलाप हुआ मगर केवल 1 रन के साथ इसको धीरे से अब बढ़ता हुआ 35 रन। राजेश गोसावी ने अब तक 1 छक्का लगाया और 4 चौकियों की मदद से बिल्कुल रन की गति को बढ़ाते हुए, और नीलेश ने 2 छक्के लगाए हैं लगातार जो कि पहली दूसरी गेंद पर। तीसरी ओवर जो कि प्रगति पर और स्ट्राइक पर फिर से एक बार नील और फुलर ऑन, और वहां पर फील्डर की मौजूदगी सुंदर कैच के साथ ये दूसरा विकेट जो कि सीसी बॉयज का गिरता हुआ, खेलने का प्रयास किया मगर खेल दिया सीधे लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी की ओर, और लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, कैच धर दबोचा और संकेत को मिलता हुआ नील का विकेट। तीसरी ओवर में स्कोर वहीं पे रुका हुआ 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 3 टीमें फिर से एक बार मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पहली टीम कुडनेश्वर क्रिकेटर्स जो कि सेमीफाइनल्स में प्रवेश कर चुकी है, दूसरी टीम दोपहर के क्षेत्र में श्री बोडगेश्वर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं, गणपति वॉरियर्स को पराजित किया था उन्होंने आखिरी मैच में यानी कि क्वार्टर फाइनल में। आज सुबह नवदुर्गा क्रिकेटर्स एक टीम जो कि चली गई सेमीफाइनल्स में, जो कि तीसरी टीम, और ये मैच जो टीम जीतेगी निश्चित तौर पर निकल जाएगी सेमीफाइनल में, जो कि चौथे नंबर पर मुकाबला हो रहा है सीसी बॉयज पेंजिम की टीम, जिन्हें न्योता दिया गया बल्लेबाजी करने का। टॉस जीतकर गोमतेश्वर मारगांव ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। तो स्कोर 35, विकेट गिरे हैं 2, कप्तान फिर से एक बार स्ट्राइक पर मौजूद साहिल वेंगनकर। संकेत की गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद, सुंदर शॉट, पहले गेंद पर करारा शॉट लगाकर 6 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए कप्तान ने बिल्कुल एक मिसाल यहां पर दिखा दी कि इस प्रकार से बल्लेबाजी की जाती है, जैसे गेंद आई दे मारा, इसको जब पहुंचा 41 रन, 3 ओवर की समाप्ति 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और बचे हुए 2 गेंदों में अब देखना होगा कि
ऑल ओवर फुल टच पे करारा शॉट, उतनी बेहतरीन फील्डिंग, केवल 1 रन पे रोका राजेश को। इस 1 रन के साथ स्कोर 42 पर पहुंचता हुआ। राजेश गोसावी की विकेट लेने का प्रयास यहाँ पर। मतीन खान काफी नाराज फील्डर से, कह रहे थे कि थ्रो करो स्टंप पर, मैं हूं बैकअप के लिए। फिर से एक बार सुंदर गेंदबाजी का क्रम। आखिरी ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी कर अपनी टीम को जीत दी थी नरू असोल्डेकर ने। तो इस बार चौथी ओवर में आए हैं, थोड़ी सी फील्डिंग में हरकत, दिशा दिखाते हुए फील्डरों को। गेंद हवा में, कैच का मौका, तो देखना होगा कि कौन सा खिलाड़ी कैच लेगा। और एक आसान सा कैच यहां पर। उसके साथ कप्तान सीसी बॉयज के इनिंग का समापन, यानी कि साहिल वेंगरकर लंबा शॉट लगाने की फिराक में बिल्कुल खेल दिए ऊपर, और एक आसान सा कैच हुआ लॉन्ग ऑन की दिशा में। राजेश गोसावी स्ट्राइक पर। फिर से एक बार गेंद हवा में, इस बार निश्चित तौर पर निकल जाएगी मैदान के बाहर। इस प्रकार से बिल्कुल सही पकड़ बनाई शॉट पर और दे मारा मैदान के बाहर। इस 6 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 48 रन। प्रीतेश उतरे हैं मैदान पर सीसी बॉयज की ओर से कप्तान के आउट होने के बाद, यानी कि साहिल वेंगनकर, जो कि आखिरी विकेट गिरा। और गेंद हवा में, इस बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक उठाकर थ्रो करते बिल्कुल, या रन आउट का मौका जाता रहा। क्लीन कलेक्शन नहीं था, हालांकि अच्छा थ्रो आया। 2 रन आसानी के साथ जोड़े। 50 रन पर पहुंचती हुई सीसी बॉयज इस 2 रनों के साथ। लो फुल टॉस पे फिर से एक बार कड़ा प्रहार, मगर वहां पर फील्डर की मौजूदगी डीप स्क्वायर की दिशा में। जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करते, केवल 1 रन। बिल्कुल सुंदर फील्डिंग, सटीक फील्डिंग और थ्रो बिल्कुल बढ़िया मतीन खान के हाथों में। 1 रन के साथ स्कोर 51 रन। तो केवल एक लंबा शॉट लगाए इस ओवर में। फिर से एक बार रनों की गति को रोकने का प्रयास, रनों पर अंकुश लगाने का प्रयास यहां पर नरू असुल्डे द्वारा। क्या ही रोचक रोमांचक मैच होता हुआ, बिल्कुल कांटे की टक्कर। पटकी हुई गेंद फिर से एक बार खेलने का प्रयास, पूरी तरह से चुके प्रीतम, जो कि नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर। इस डॉट गेंद के साथ 4 ओवरों की समाप्ति, और 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 51 रन 51, 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे रघु। ना किसी हीरो के बच्चे, वे हैं सीधे साधे अक्षय। अक्षय गेंदबाजी लेकर 5वीं ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्कोर 51। राजेश गोसावी जो कि स्ट्राइक पर। तो बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग मुकाबले होने की संभावना। और लोअर गेंद पर फिर से एक बार कड़ा पड़ा, वहां फील्डर की मौजूदगी, बिल्कुल गेंद को दे मारा है मैदान के बाहर। राजेश गोसावी एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो बिल्कुल
जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है गेंदबाजों के विरुद्ध में, और उनके बल्ले से काफी सारे रन हर एक गेंदबाज के पीछे लगे हैं। राजेश गोसावी इस 6 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 57 रन, 57 रन। फिर से एक बार ये शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लगातार 2 छक्कों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 63 रनों पर 63। तो फिलहाल एक कमबैक करना होगा, और बिल्कुल एक योद्धा खिलाड़ी हैं अक्षय। मैं काफ़ी अरसे से उन्हें जानता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मगर ये एक वॉरियर हैं, कभी ना हार मानने वाले। देखिए, हालांकि 2 गेंदों में 2 छक्के लग चुके हैं, स्कोर को पहुंचा चुके हैं 63 रनों पर, मगर अच्छी कमबैक करेंगे। यहाँ पर साइड चेंज किया है, राउंड विकेट इस बार अक्षय। सुंदर गेंद के साथ क्लीन बोल्ड किया, और बिल्कुल मैंने उम्मीद की थी कि अच्छा कमबैक करेंगे, और निश्चित तौर पर अपने आप को खड़े उतरते हुए और अपने आप को साबित करते हुए एक बेहतरीन बल्लेबाज के अगेंस्ट में उन्हें क्लीन बोल्ड कर राजेश गोसावी को चलता किया। हम कड़ा मुकाबला होता हुआ, बिल्कुल अशोक जी, मजा आ गया इस टूर्नामेंट में। गोवा के बेस्ट बेस्ट टीम इस मैदान पर आपस में भिड़ती हुई, हर कोने हर क्षेत्र से टीम यहाँ पर पहुंचे, यहाँ तक कि उस गांव से भी कल गणपति वॉरियर्स आई थी। स्कोर 63। सचिन भंगारी जो कि मैदान पर आए हैं, अक्षय गेंदबाजी करेंगे सचिन को। स्कोर 63, 3 गेंदे आनी शेष। ओ बिल्कुल फिर से एक बार यॉर्कर लाइन बोल्ट की काफ़ी तेज़ गति से, तो देखना होगा इशारा बाय का। इस बाय के साथ स्कोर को पहुंचाया 64 रनों पर 64। आखिरी बची अब 2 गेंदे, बिल्कुल एक अच्छी कमबैक कर चुके हैं, हालांकि पहले पहले काफ़ी महंगे साबित हुए। एक अच्छा कमबैक, 2 गेंदों में केवल 1 रन और 1 विकेट भी। प्रीतम स्ट्राइक पर, और ये आउट। सचिन रह गए, हालांकि दौड़ लगाई थी। तो देखिए क्या ही सुंदर कमबैक करते हैं, और निश्चित तौर पर गाना प्ले करना पड़ता है डीजे रघु, सीधे साधे अक्षय। तो मैदान पर उतरते हुए विकी कारापुरकर, जो काफी लंबे अरसे तक गोवा पुलिस के लिए खेल चुके हैं, एक बेहतरीन खिलाड़ी तिसवाड़ी के स्ट्राइक पर। आखिरी गेंद, गेंद हवा में, देखना होगा क्या कैच है या फिर गेंद निकल जाएगी। बिल्कुल कैच का मौका यहाँ पर, एक आसान सा कैच ले लिया, और तालियों के साथ वेल डन कहते हुए सभी खिलाड़ी गुमतेश्वर मारगांव के।
गोमतेश्वर मारगांव को। तो क्या गोमतेश्वर मारगांव हर ओवर में 13 रन बनाकर लक्ष्य तक यानी कि 65 रनों तक पहुंच पाएगी या फिर रोकने में कामयाब रहेंगे गेंदबाज अच्छी फील्डिंग के साथ। तो आगे का हाल मेरे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में एक एक्सपर्ट कमेंटेटर अशोक जी नाइक, उनका स्वागत। इसी बीच अंपायर ने कहा इट्स ओवर एंड टाइम। तो ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। थैंक यू नदीम। आखिरी मुकाबला क्वार्टर फाइनल का, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश। और विकी उर्फ विवेक गेंदबाजी के मोर्चे पर 65 का टारगेट मैच को जीतने का। शानदार बल्लेबाजी, 44 रन राजेश गोसावी। और पहले गेंद पर शानदार शॉट, गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। आखिरी मुकाबला और विवेक उर्फ विक्की अपने बॉलिंग मार्ग पर आगे निकले, हाफ वाली पर लिया, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद और इसी के साथ पहली सफलता। सरवटना जल्दबाजी कर बैठे और पहले विकेट का पतन होता हुआ। सरवणना के आउट होने के बाद दिनेश और नदीम बहुत बहुत धन्यवाद देने पड़ेंगे हमारे चायमैन, हमारे शाकाल को, जो बहुत गर्मा गर्म बीच में चाय लाकर दिया उन्होंने। शाकाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक उर्फ विक्की गेंदबाजी पर राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस आड़े बल्ले से खेला, गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लगभग काउ कॉर्नर में फील्डर राजेश गोसावी गेंद को फील्ड करते सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन दिनेश ने खाता खोला। सरवणना 4 पर, टीम का स्कोर 5। टारगेट मैच को जीतने का 65 का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। चौथी टीम बस थोड़ी देर में पक्की होगी। कल 2 सेमीफाइनल के मुकाबले, उसके बाद एक वेटरन मुकाबला और 3 बजे ठीक फाइनल का मुकाबला इस टूर्नामेंट का। अच्छी गेंद सामने ड्राइव किया, इस बार अपने पालोत्र में गेंद को फील्ड करते विकी धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर बढ़िया गेंदबाजी की गोमटेश्वर क्रिकेट टीम ने।
शानदार बल्लेबाजी राजेश गोसावी, 4 छक्के 3 चौके अपने इनिंग में, 44 रन, एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग। और उसके बाद अब देखना होगा किस तरह से ये मुकाबला इन दोनों के बीच में समाप्त होता है। सुंदर शॉट कारपेट के साथ, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, अच्छा थ्रो, बहुत ही करीबी मामला बन सकता था, अच्छा थ्रो, स्टंपों पे नहीं लगी, सीधी मतिन के बल्ले पे बैट पे लगी गेंद। फिलहाल गेंद निकली कवर पर, फील्डर मौजूद, सिंगल पूरा किया। इस बीच में दोनों बल्लेबाजों ने, कमेंट्री बॉक्स में दिनेश मयेकर हमारे साथ स्कोरिंग की पूरी जानकारी, मैं अशोक नाइक, मेरे साथ नदीम अहमद, हमारे यूट्यूब के गौरव सावंत, राकेश और विघ्नेश, उन्हीं के साथ हमारे स्कोरर मनोज, इन सभी के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं उनका भी एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। सुंदर ट्रॉफी कल शाम को फैसला हो जाएगा। 1 लाख नकद राशि, 1,11,000, एक बड़ा इनाम इस टूर्नामेंट का। और ओवरपेज गेंद बाहरी किनारा लगा था जरूर, लेकिन स्लिप पर फील्डर, फ्लाइंग स्लिप पर फील्डर मौजूद, पहले बाउंस के बाद गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। थोड़ी सी धीमी शुरुआत, स्कोर बोर्ड पर 6 रन, 1 विकेट पर, टारगेट 65 का 7 रन थे। दोनों टीमों को अगर कंपेयर किया जाए, इस टीम ने बनाया है 6 रन, फिलहाल 1 विकेट, आने वाले 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी। लगी लेग बाइज के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। मोहसिन शेख, दिनेश नाइक, त्रिमूर्ति, उन्हीं के साथ सर्वामन मयेकर। कल फिर से उपस्थित होंगे शुभ शरण उर्फ बाबू दाभोलकर इस मैदान पर, और साहिल धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। आज का आखिरी मुकाबला, दूसरा दिन, सही समय पर पहला मैच 9 बजकर कल 2 मिनट, आज 9 बजकर लगभग 5-6 मिनट पर, और कल आखिरी पड़ाव 9:30 बजे सेमीफाइनल का पहला मैच। जोरदार बल्ला घुमाया, ऑफ स्टंप पर यह गेंद, जोरदार बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। लेग कटर, लेग ब्रेक, गेंद ने काटा, बदला, कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज थोड़ा सा शायद उम्मीद कर रहे थे वाइड बॉल के लिए, लेकिन अच्छी गेंद थी। लेग कटर, लेग ब्रेक, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद के साथ साहिल धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक एंगल के साथ गेंदबाजी कर रहे, बिल्कुल लेग कटर, लेग ब्रेक। इस बार फिर से बाहरी किनारा, गेंद हवा में गली पर, और जब तक स्लिप के फील्डर गेंद को फील्ड करते, 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। कोई बड़ा शॉट हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं साहिल अपने बॉलिंग पर। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन, 1 विकेट, और
विवेक उर्फ विक्की, उसके बाद साहिल की शुरुआत। और अब तक की अगर 4 गेंदों का सवाल मैदान पर, तो कोई बड़ा शॉट नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी, कम टोटल का मुकाबला, तो ये गेंदबाजी करनी पड़ेगी, फील्डिंग चौकन्नी रखनी पड़ेगी, चुस्त करनी पड़ेगी। अच्छा शॉट बॉलर के पास से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, सिंगल बनेगा स्कोर में। 1 रन और बन गया स्कोर के खाते में। 9 पर पहुंचा, 1 विकेट पर 9 रन, टारगेट 65 रन का। लगातार मैच खेलते रहे ये सब खिलाड़ी। धूप है मैदान पर, आज थोड़ा सा थकान जरूर होगी। ये गेंद अच्छी लाइन पर, तेज गेंद ऑफ स्टंप पर, और इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 9 रन 1 विकेट पर। और नए बल्लेबाज नरेश असोरनेकर, और बॉलिंग में परिवर्तन। और गेंदबाजी पर, बॉलिंग बार पर मनोहर। लेग ब्रेक पिछले मैच में मैच को जीता नरेश नरेश असोरनेकर, रिटायर्ड आउट बिल्कुल। तो दूसरा विकेट, हाँ बिल्कुल, तो 2 विकेट वापस। नए बल्लेबाज मैदान पर नरेश असोरनेकर। छोटी गेंद इस बार हुक किया गया बड़ी खूबसूरती के साथ, डीप लॉन्ग लेग पर फील्डर मौजूद, शानदार फील्डिंग। गेंद को रोका और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे किए। इस बीच में दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मिले स्कोर में। 53 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। 54 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। 11 पर पहुंचा टोटल स्कोर 2 विकेट पर। 54 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। रिवर्स की कोशिश सफल नहीं रहे मतिन। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी मनोहर की, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट फिर की गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छी लाइन पर। पिछले मैच में 60 रन, मतीन खान हीरो, और उसी के साथ मनोहर वो भी हीरो पिछले मैच में। और दोनों आमने सामने इस बार क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। इस बार छोटी गेंद हुक किया बड़ी खूबसूरती के साथ, डीप लॉन्ग लेग सीमारेख पर एक लंबा छक्का 6 रन के लिए।
6 रन मतीन खान के बल्ले से निकलता हुआ। फुल टॉस सामने उड़ाया इस बार 6 रन के लिए, बॉलर के ऊपर से कमेंट्री बॉक्स से पीछे गेंद 6 रन के लिए, लगातार दूसरा छक्का मनोहर की गेंदबाजी पर। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में। पहली बार इस बार ओवर पेज गेंद और एक तगड़ा शॉट मतीन खान के बल्ले से, छक्कों की बौछार मैदान पर, हैट्रिक छक्कों के मैदान पर, लगातार 3 छक्के और 3 छक्के के साथ स्कोर 29 टोटल, लॉस ऑफ 2 विकेट। विकेट बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर इस बार अच्छा शॉट, गेंद हवा में, लेकिन गेंद चले गई। 2 फील्डर जरूर थे, लॉन्ग अप और डीप लॉन्ग अप के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। तो क्या मैच को इन 4 शॉट के साथ फिर से कमबैक किया गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम ने। स्कोर हो चुका है 35 रन, आने वाले 2 ओवर का 12 बॉल्स और 30 रन, 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 30 रन। 12 गेंदों में 30 रन, 12 बॉल 30 रन, 12 गेंदों में 30 रन। बॉलिंग मार्ग पर प्रीतेश सामने नरेश असोनेकर, 12 बॉल 30 रन। अच्छा शॉट, सिंगल तो मिलेगा मिड विकेट बाउंड्री पर। फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। खेल बचा हुआ 11 गेंदों का और चाहिए मैच को जीतने के लिए 29 रन। 11 गेंदों में 29 रन, एक बहुत ही शानदार मुकाबला। आज काफी कांटे का टक्कर देखने को मिला। 3-4 मैच इस तरह से हुए कि बिल्कुल आखिरी ओवर पर चले गए और ये मैच तो क्वार्टर फाइनल का है। एक का दरवाजा खुल जाएगा कल के लिए सेमीफाइनल में 9:30 बजे ठीक पहला सेमीफाइनल का मैच होगा कल के दिन का, ठीक 9:30 बजे, 9:15 बजे टॉस और उसी के साथ 9:30 बजे मैच। लेग स्टंप पर इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर बाउंड्री की तरफ, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। और जब तक गेंद को थ्रो करते, अगर नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो करते तो नरेश असोंडेकर थोड़े सा दूर थे, तैयार नहीं थे दूसरे रन के लिए। 2 रन फिलहाल स्कोर के खाते में और जुड़ते हुए स्कोर आगे बढ़ा 38-38 रन पर।
बहुत ही शानदार मैच। चौथा ओवर, आखिरी ओवर, सचिन बंगारी जरूर आएंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर, लेकिन उससे पहले मतीन खान क्या करते हैं देखना होगा इस गेंद पर। और भटके अपने लाइन पर, लेग स्टंप पर देखना होगा, अंपायर का इशारा। वाइड बॉल का मोहसिन शेख मुड़ते हुए हमारी और एक रन, यानी टोटल मिले 2 रन, एक गेंद भी मिली ज्यादा। थोड़ा सा प्रीतेश जो कि अपनी लाइन पर इस बार भटके 2 रन मिले स्कोर में, और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 40 पर। अभी भी चाहिए 25 रन मैच को जीतने के लिए। अच्छा शॉट ऑन साइड पर देखना होगा, 2 फील्डर मिड विकेट बाउंड्री पर, शानदार फील्डिंग और सिंगल मिला इस बार मात्र। दूसरे की संभावना को समाप्त कर दिया मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर ने। तो फिलहाल 1 रन और 41 रन, 41 टोटल, लॉस ऑफ 2 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, चौथा ओवर अभी भी जारी। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, सचिन बंगारी रोक नहीं पाए, थोड़ी सी दूर गेंद से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, 6 रन के लिए। थोड़ी से हाथों से दूर निकली सचिन बंगारी से, कोशिश बढ़िया थी। 6 रन बहुमूल्य स्कोर में, और 6 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 47। स्ट्राइक पर मतीन खान, गेंदबाजी पर प्रीतेश। 18 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। हो क्या बड़े खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग से मारे का से बाहर एक लंबा छक्का, मतीन खान के बल्ले से 6 रन। थ्री 53 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। 12 रन और गेंदे बाकी है 7। 12 रन चाहिए, ये गेंद काफी मायने रखेंगी। अगर डॉट निकालने में सफल रहे प्रीतेश तो अंतिम ओवर में 12 रन बच जाएंगे हाथों में। सीसी बॉयज क्रिकेट टीम के मतीन खान बिल्कुल एक फिर से तोड़फोड़ की बल्लेबाजी, मैदान पर लंबे लंबे शॉट लगा रहे हैं। लेग स्टंप पर यह गेंद 1 रन के लिए निकले थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर शानदार थ्रो, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। 54 अभी भी चाहिए 11 रन, लेकिन यह देखना होगा वाइड बॉल किसको फायदा होता है, गोमटेश्वर मरगांव को या सीसी बॉयज क्रिकेट टीम को। अगर विकेट मिला तो फायदा होगा सीसी बॉयज को, अगर बड़ा शॉट लगा तो फायदा रहेगा इस वाइड बॉल का गोमटेश्वर। फिर से वाइड बॉल, जरूर देखना होगा क्या हुआ। वाइड बॉल का इशारा, दौड़कर 1 रन पूरा किया, मिले टोटल 2 रन। लगातार परेशानी प्रीतेश,
शायद थोड़ा सा प्रेशर है मैच पर क्योंकि मुकाबला क्वार्टर फाइनल का है। और फिलहाल स्कोर आगे निकला 56 टोटल, लॉस ऑफ 2 विकेट। और पेश गए नरेश असुरनेकर, हवाई फायर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई 6 रन के लिए। छह गेंदे 3 रन सचिन बंगारे। नदीम कुछ समझ में नहीं आया, तीसरा ओवर मनोहर आए गेंदबाजी पर, जो हमेशा 5वां ओवर गेंदबाजी करते थे, फिरकी गेंदबाजी, और वहीं पर मनोहर पर टूट पड़े बल्लेबाज। 26 रन बने उस ओवर में। जो मैच विनर गेंदबाज थे पिछले मैच के, उन्हीं के ऊपर हल्ला बोल कर दिया मतीन खान ने। 42 पर खुद के व्यक्तिगत, पिछले मैच में 60 रन, इस मैच में फिर से एक शानदार बल्लेबाजी। और स्कोप किया बड़े खूबसूरती के साथ, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई 6 रन के लिए। और इसी के साथ गुमतेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में चौथे टीम। और एक ही नाम बिल्कुल सर, नीलेश सर, मैन ऑफ द मैच के लिए फिर से एक बार मतीन खान, 45 रन की शानदार बल्लेबाजी, इस आखिरी आज के मैच के मैन ऑफ द मैच। और फिर से जुड़ जाते नदीम अहमद।